Good evening, IIBM. My name is Balkrishna, and we are back again with yet another interesting session. I welcome you all to IIBM's induction program of 21st Batch Ignite 2020. Before we begin, let me take you through the itinerary of the session. The session is of 45 minutes of knowledge sharing, followed by 15 minutes of question and answers. So do post your interesting, igniting, and awakening questions. It gives me immense pleasure to introduce you to our today's speaker, Mr. Ajay Arora, a seasoned professional with more than 2 decades of rich, diversified experience in the field of education as trainer, teacher, mentor, administrator, and counselor. His keen interests and expertise are in bringing insight from Indian mythology to business management. He also have varied interests ranging from yoga, psychology, and language to management, science, and technology. He's also been mentoring startups in the field of marketing and operation with his entrepreneurial zeal, with keen interest and skills in converting it to entrepreneurial efforts. He is currently serving Time Institute Jaipur Center as language faculty cum students mentor. Academically, Mr. Arora is diploma holder in mechanical engineering from Roorkee, bachelor in psychology from Jivaji University Gwalior, bachelor's in education from Hindi Sahitya Sammelan Allahabad, postgraduate diploma in guidance and counseling from Annamalai University, and diploma in yoga and naturopathy from Vivekananda Kendra Yoga Research Foundation. So, ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Ajay Arora. Good evening, everybody. It's my pleasure, and thank you, Mr. Balkrishna, for this wonderful introduction. Certainly, I'll try my best to do justice with this kind of platform. This is going to be something new for everybody as such, and any kind of challenges that you are likely to face, please ensure that you overcome them, because these kind of challenges you are going to face now throughout your career as such. As the careers are moving now from real to virtual, I won't say that there is no real career now, but the mode of conduct of your careers is going to be virtual in most of the cases. So welcome to reality. This is what it is. Okay. Let me begin with a small poll. Let me take the poll later. Okay, I'll start with my presentation. Right. So here I am presenting you some management learnings from mythology. Right. And the name of my program is Vikalp. Why I say Vikalp? Vikalp is like, in Hindi, Vikalp means alternative. See, most of the management education in most of the B schools or any institution in worldwide is majorly driven by theories and practices which are taken from Western mythology sites. So you may be wondering, how come management lessons are taken from mythology? So you would see this link now when I'm going to explore the whole thing. There is a management aspect to Indian mythology also. So I'm presenting this as a Vikalp, that means the alternative. So when we look at the management practices, theories, and in terms of execution, it's not just one way of doing the things. There is a different way, or rather there are many ways. So I'm presenting you with one Vikalp, which is based on Indian mythology. Right? Now, before I begin my session in detail, let me give you a disclaimer. What is this disclaimer is that when I talk about Indian mythology, so there are other mythologies also, prominently like Greek mythology, Islamic mythology, and other mythologies also. Why I have chosen Indian mythology management lesson? Because this is what I know a little. What about the other mythologies? Are there management learning from those mythologies also? Absolutely yes. Only thing is, since this is my area of study and little bit of expertise,
That's why I'm sharing these things with you. So there is no offense when I say that I'm talking about Indian mythology, not talking about any other mythology. Please don't take any offense with that. Try to learn something from Indian mythology. If there is someone who can teach you from the other mythologies, wonderful. Try to assimilate things. So we need to assimilate things from different sources. That's how the life would become rich in terms of learning, and of course, rich in terms of experience, right? So repeating my disclaimer, that is, I have no prejudice against any other mythology or belief system, because generally the moment I say mythology, we talk about belief system. What I'm talking about is Indian mythology. So what is Indian in that case? Indian means the origin of this and the practice of this mythology or the belief system is Indian subcontinent or the east part of the world. I think you understand the difference between eastern part and western part, right? So Indian mythologies, the mythology or the belief systems originated in this part of the world, that is the east part of the world or the Indian subcontinent. Okay. Moving to the next slide. Again, this is what I explained. My lessons or business management understanding is from Indian mythology. Let's look at this gentleman. So you must be wondering that this gentleman is sitting on a lotus and wearing tie with four heads. Four heads are for Brahma, creator. Now, what did Brahma create? Is this creation? Is this true or false? Why should we learn this in management? Is it really relevant? You will see it. I'll try to make it as interesting as possible for you, and you will see that these things are not some obscure stories, but these are things which have their implications on what we do today in this modern or ultra modern world, right? So creator of the world is sitting there wearing a tie that makes it more relevant or modern. So what is mythology? Let's talk about what is mythology. So there are two aspects to it, myth and logy. Logy, of course, we know is studying something. So we study myth. So what is myth? Let's talk about myth. So most often we have an understanding of something that is myth in terms of something which is not true. How we say, how we converse, that is, नहीं ये तो myth है, this is not truth. समथिंग जो सच नहीं है, सिर्फ हम उसमें बिलीव करते हैं, वो माइथोलॉजी है या मिथ है. लेट अस सी कि सही में माइथोलॉजी क्या है. क्या वो झूठ की सेंस में बात हो रही है या किसी का सच है, किसी ने ऐसा देखा था, किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया था, किसी का ऐसा बिलीफ है, वो उसका सच है. Whose truth? So my truth, थियो, ये दो वर्ड से मिलके बनता है मिथ. My थियो, थियो means truth. So what we talk about mythology is my truth. That means मेरा सच क्या है. तो क्या सच सबका अलग अलग होता है? Let's look at this. क्या सच सबका अलग अलग होता है और सच होता क्या है? Right? Looking to for next slide. तो सच क्या है? क्या सच बिलीफ है या फैक्ट है? राइट? सच क्या होता है? जो फैक्ट है क्या वो सच है या जो मैं बिलीव करता हूं वो सच है? लेट मी गिव यू अ पोल. आई वांट यू टू टेक दिस पोल एंड टेल मी, आप बताइए कि ये पोल के हिसाब से कि आपका सच क्या है. क्या वो सच फैक्ट है? क्या वो सच बिलीफ है? Okay, I have started getting responses. I'll just wait for few seconds to see कि आप लोगों का क्या response आ रहा है. Okay, good. कुछ कह रहे हैं fact है, कुछ belief है. Okay, okay. So this is what I expected. Most are on one side. कौन से side मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी otherwise फिर poll गड़बड़ हो जाएगा. So just quickly अपना poll दीजिए. आपके हिसाब से सच क्या है? क्या वो सच fact है या वो सच बिलीफ है? What is more important to you, fact or belief?
Okay, so it is quickly few more seconds, 1 2 3 4 something of that sort, and then I will share that with you. Okay, so I got a response. Interestingly, fact is about 80% and belief is like 20%. So let us see. I expected this. In this modern world, science based understanding of the world, fact would be superior in terms of belief. सच जो है वो फैक्ट होगा, ना कि बिलीफ होगा. आई एम एंडिंग दिस पोल. थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स. इट्स लाइक 75-25 नाउ. चलिए, तो अब देखते हैं कि फैक्ट और बिलीफ में क्या डिफरेंस है, किसको हम सच माने या ना माने. अभी ये फिलहाल आपका इस तरह का झुकाव है. लेट्स सी. सो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है गणपति जी, और एक साइड डिस्प्ले हो रहे हैं कार्तिकेय जी, राइट. सो अगेन, एज आई टोल्ड, आई हैव नो प्रेजुडिस अगेंस्ट एनी रिलीजन, बिकॉज रिलीजन से मत देखिए इसको. इसको देखिए माइथोलॉजी में जो स्टोरीज हैं. अब आप स्टोरी माने, उसको सच माने, जो भी मानिए, वहां से हम सीख कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज व्हाट इज द एंडेवर, राइट. आई एम नॉट प्रमोटिंग और डिमोटिंग. मैं बार बार क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी इस चीज को लेकर ऑफेंस न ले कि ये इसको ऐसा कर रहे वैसा कर रहे. जो मुझे आता है मैं वो बता रहा हूँ, राइट. ओके, समझिए. एक छोटी सी स्टोरी है. स्टोरी में नारद जी कहते हैं कि दोनों में से सुपीरियर कौन है, गणपति जी और कार्तिकेय जी, तो दोनों में से सुपीरियर कौन है. तो नारद जी कहते हैं जरा देखते हैं कौन सुपीरियर है. तो नारद जी ने एक छोटी सी कंपटीशन रखा. कहा जो पूरे विश्व का चक्कर लगा के आएगा, जल्दी आ जाएगा, वो जो है सुपीरियर है दोनों में से. सो द मोमेंट दिस स्टार्टेड, कार्तिकेय जी जो उनका अपना वाहन है उसमें बैठे, दैट इज पीकॉक. सो ही टुक दैट व्हीकल और ही स्टार्टेड टेकिंग राउंड ऑफ द वर्ल्ड. इमीडिएटली जो गणपति जी थे उन्होंने कुछ सोचा, विचार किया, और उन्होंने अपने माता पिता, दैट मीन्स शिव जी और पार्वती जी, उनके चारों तरफ एक चक्कर लगाया. जितनी देर में उन्होंने चारों तरफ चक्कर लगाया, उतनी ही फास्ट स्पीड से कार्तिकेय जी वापस लौट कर आ गए. सो द कॉम्पिटिशन, नारद जी से पूछा गया तो कार्तिकेय जी बोले कि आई एम द विनर, बट गणपति जी बोले कि आई एम द विनर. सो कार्तिकेय से पूछा गया कि हाउ आर यू द विनर. ही सेड कि मैं पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आया हूँ. गणपति जी से पूछा गया कि आप विनर कैसे क्लेम कर रहे हो. तो गणपति जी ने कहा कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा विश्व है. नाउ यू मस्ट थिंक, कौन जीता, फैक्ट या बिलीफ. नाउ यू मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस. मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि गणपति जी जीत गए या वो जीत गए, क्योंकि इन सब इंसिडेंट्स को कोट करने के पीछे रीजन किसी को बड़ा या छोटा दिखाना नहीं है. द पर्पस इज टू टेल यू that there are different perspectives to look at the whole thing. For somebody, the belief that the parents are everything, पूरा world is मेरे parents ही हैं सिर्फ, he moved around that. So अब आप कहेंगे कि competition के rules clear नहीं थे. अगर आप ध्यान से देखें तो rules कभी भी clear नहीं होते हैं. आपकी interpretation हमेशा रहेगी. This is management learning for you. Rules को interpret करने की जो फ्रीडम है वो आपके पास है, राइट. कभी भी मैनेजमेंट में जो भी रूल सेट किए जाएंगे, अब मैनेजमेंट का मतलब कंपनी का मैनेजमेंट नहीं, जब भी आप कोई किसी टास्क को कर रहे हैं तो आप एक डिफाइंड एनवायरनमेंट में उस टास्क को कर रहे हैं, और उस टास्क में को जब आप डिफाइंड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो वो डेफिनेशन जो है उसको इंटरप्रेट करने की आपके पास छूट है. दैट मीन्स कि आप इंटरप्रेट करके अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से उस चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं टू अ गुड एक्सटेंट, नॉट ऑल द थिंग्स, राइट. सो यहाँ से कुछ ये समझ में आ रहा है कि ट्रुथ हमेशा फैक्ट बेस्ड नहीं होती, वो बिलीफ भी होता है. लेट्स लुक एट दैट. सो किसी ने पूछा, सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर डिस्प्लेड हियर. देयर इज अ चाइल्ड आस्किंग मदर, डिड राम एंड कृष्णा एग्जिस्ट, क्या वो हुए थे कभी. सो मदर सेड यस. तो रामायण और महाभारत क्या एक्चुअली हुए थे. मदर सेड यस. चाइल्ड इज आस्किंग
कहाँ हुए थे और कब हुए थे. नाउ द चाइल्ड इज आस्किंग फॉर फैक्ट्स. मदर इज सेइंग एवरीवेयर एंड ऑलवेज. उनका कहने का क्या मतलब है कि हमेशा और हर जगह रामायण और महाभारत हो रहे हैं. व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है? सो लेट्स लुक एट रामायण एंड महाभारत अ लिटिल. सो व्हाट इज रामायण ऑल अबाउट? अगर शुरुआत से देखें तो इट्स अबाउट अ प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर जो राज्य है वो कैकई जो है चाहती है उसके बेटे को मिले, इसलिए वो एक प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट है. और उस प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट ने कुछ सिचुएशन क्रिएट की. तो मुझे बताइए, क्या ये प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट आज भी होता है या नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है. क्या सिर्फ इंडिया में ही होता है या पूरे वर्ल्ड में होता है? आई थिंक पूरे वर्ल्ड में होता है. क्या हमेशा से होता आ रहा है? बिल्कुल होता आ रहा है. इफ यू लुक एट महाभारत, अगेन महाभारत, प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट. तो क्या ये सब कुछ होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है. कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली अबाउट प्रॉपर्टी, द कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. लुक एट रामायण, सिचुएशंस, आपके रोल्स क्या हैं. राम हैं, वो राजा की तरह हैं, वो राजा की तरह सोचते हैं. सीता हैं, उनका पहला धर्म पत्नी की तरह है, वो पत्नी की तरह सोचती हैं, एंड सो ऑन. तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? हमारे दिमाग में भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं? ऑफ कोर्स आते हैं. सो चाइल्ड इज आस्किंग प्रूव इट. सो मदर सेज लुक इन योर माइंड, अपने दिमाग में झांक कर देखो, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होते हैं या नहीं होते हैं? तो चाइल्ड सेज कि बट ये रियल नहीं है, रियल नहीं है. सो दैट इज नॉट हिस्ट्री. हिस्ट्री को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिस्ट्री को दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है हिज और दूसरा है स्टोरी. इसका मतलब हिस्ट्री भी किसी की स्टोरी है, किसी ने बताया है, राइट? तो क्या वो भी 100% फैक्ट बेस्ड है? नॉट एग्जैक्टली, राइट? उसमें भी कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन, बिलीफ, ये सब कुछ इंक्लूडेड है. ओके, सो रामायण और महाभारत, दीज आर नॉट ओनली स्क्रिप्चर्स और स्टोरीज. ये ह्यूमन लाइफ की स्ट्रगल, उसके चैलेंजेस, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बता रहा है. तो क्या इससे हम कुछ सीख सकते हैं? ऑफ कोर्स, इसी के लिए हम आज का सेशन कंडक्ट करें. क्या सीख सकते हैं? लेट्स लुक एट दैट. तो ट्रुथ क्या है? फैक्ट ट्रुथ है या बिलीफ ट्रुथ है? ट्रुथ किसको मानेंगे? अब ट्रुथ भी अलग अलग तरीके से हो सकती है. कोई कह सकता है कि ट्रुथ वो होती है जो किसी बुक में लिखी है और वो क्लेम की जा रही है कि वही ट्रुथ है. पॉसिबल. कोई कहता है कि ट्रुथ वो है जो कि मैं कह रहा हूं, यानी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस. कोई कहता है कि ट्रुथ वो हो सकती है कि जिसको प्रूफ कर सकते हैं. प्रूफ मतलब साइंस, साइंटिफिक, फैक्ट. फैक्ट है या नहीं है? देयर इज फोर्थ पर्सन जो उन सब की तरफ देख रहा है. ध्यान से देखिए. वो कहता है ट्रुथ. किसकी ट्रुथ की बात कर रहे हैं? मेरी ट्रुथ या तुम्हारे ट्रुथ की? अभी हमने देखा कि ट्रुथ जो है वो सब्जेक्टिव है, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव. ट्रुथ सब्जेक्टिव है. सो दैट पर्सन इज आस्किंग ट्रुथ इज व्हाट वी ऑल इमेजिन इट टू बी. तो क्या उसमें फैक्ट है या नहीं है? बिल्कुल है. क्या उसमें बिलीफ है या नहीं है? बिल्कुल है. क्योंकि इमेजिनेशन जो है वो बिना फैक्ट्स के भी नहीं होता है. सो यू में से कि सर बिना फैक्ट के इमेजिनेशन नहीं हो सकता. सोच के देखिए. से फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहूँ somebody says कि इमेजिनेशन इज कि एक डंकी है जिसके सिर पे सींग है, तो ये इमेजिनेशन है. नाउ बट टेल मी, इस इमेजिनेशन में जो दो चीजें यूज की, डंकी एंड सींग, राइट, क्या ये दो रियल है कि नहीं, फैक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है. बट दोनों का कॉम्बिनेशन इज एन इमेजिनेशन. सो इमेजिनेशन में फैक्ट भी है और आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी है. सो ट्रूथ इज बेसिकली व्हाट वी ऑल इमेजिन इट टू बी. क्लियर? ओके. सो अगर ट्रूथ जो है वो इमेजिनेशन को इंक्लूड करते हुए है, तो फिर उस ट्रूथ से हमारा बिलीफ आता है. आपको ऐसा लग सकता है कि सर इसका अभी भी मुझे मैनेजमेंट से रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है. दिस इज वेयर नाउ आई एम टेकिंग द होल सेशन टू.
ये जो हमारी ट्रुथ है, जो एक्सप्रेशंस हैं, हम अपने बिलीफ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. लेट्स लुक एट दैट. बिलीफ जो है अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होता है. बिलीफ, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, फैशन, फूड, ये कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं. Mythological expressions of belief, that is story, symbol and ritual, that is mythology. और मैनेजमेंट के जो एक्सप्रेशन हैं वो किस तरह के हैं, वैल्यू क्या है, विजन क्या है, प्रोसेस क्या है, ये एक्सप्रेशन है मैनेजमेंट के. राइट. लेट्स लुक एट वन एग्जांपल कि हम इसको अलग अलग क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं. अब मैं यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना शुरू कर रहा हूँ बिलीफ सिस्टम को ईस्टर्न बिलीफ सिस्टम और वेस्टर्न बिलीफ सिस्टम की. ठीक है. बात करते हैं फूड की, कल्चरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फूड की. नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी वेस्टर्न फूड है, व्हेन आई से वेस्टर्न फूड, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पिज्जा. नाउ पिज्जा जो आप खाते हैं, आपको जब सर्व किया जाता है तो आप पहले डिफाइन करते हैं कि मुझे इस तरह का क्रस्ट चाहिए, मुझे इस तरह की टॉपिंग चाहिए, मुझे इस तरह का चीज बेस, वो सब कुछ आपको इस तरह का चाहिए. वैसा आपको कुक करके आपके लिए आता है. राइट. ठीक है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. राइट. आपके लिए अलग से आएगा, स्टैंडर्ड आएगा, वो स्टैंडर्ड आपको सर्व कर दिया जाएगा. आप उसमें ज्यादा से ज्यादा थोड़ी चटनी वटनी या कुछ टॉपिंग्स थोड़ा बहुत प्रेफर कर सकते हैं. बट लेट्स लुक एट इंडियन फूड. इंडियन फूड में थाली बनती है. आई थिंक हम सब लोग जो है थाली में खाना जानते हैं इंडियन फूड को. सो थाली में यू विल हैव सब्जी, दाल, रोटी, चावल, पापड़, अचार, कर्ड, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. नाउ सबके लिए अलग अलग आता है क्या, अलग अलग बना हुआ आता है? नो. लेकिन सब उसको अपने तरीके से खाते हैं. जिस समय सर्व हो गया तो सबसे पहले खाने का जो प्रोसेस है वो मिक्सिंग करके है. सो कोई किस प्रोपोर्शन में किसी चीज को मिक्स करेगा, उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, इसका टेस्ट डिफरेंट होगा, इसका टेस्ट डिफरेंट होगा, इसका टेस्ट डिफरेंट होगा. इनफैक्ट अगर 10 लोग खाने के लिए बैठे हैं और वो अपने प्रोपोर्शन को खाने से पहले सिर्फ मिक्स कर रहे हैं, उन 10 लोगों के पोर्शन को सिर्फ मिक्सिंग के बाद अगर टेस्ट किया जाए तो सबका टेस्ट डिफरेंट होगा. नाउ व्हाट डज इट मीन? वेस्टर्न बिलीफ सिस्टम इज अबाउट वन ट्रूथ. सच है वो एक ही है और वो सबके लिए एक जैसा है. सो जैसा आपने कहा मैंने बनाया और वो आपको सर्व कर दिया. अगर ये पिज्जा है, इस टाइप का पिज्जा है, तो ये इस टाइप का पिज्जा सबको मिलेगा, वैसा ही टेस्ट आएगा. राइट. लेकिन अगर आप सबकी थाली से अलग अलग टेस्ट करेंगे उनका मिक्स किया हुआ खाना, it will be absolutely different. Even from a single family, the taste would be different. This is what is Indian belief system का expression in terms of food, and that is about Western belief system का in terms of food. यही सारे differences हैं in terms of architecture, fashion, music and all. हम इसमें फोकस करेंगे इंडियन और वेस्टर्न बिलीफ सिस्टम को. जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट में उसको कैसे हम ट्रांसफर करेंगे. राइट. Okay, let's look at the next slide. So why we talk about management? Because mythology, जो belief decide करता है हमारा, mythology, वो जो है management को जन्म देता है. When I say management को जन्म देता है, that means कि वो जो है बात करता है कि इसकी माइंड का जो मैप है, माइथोलॉजी, उससे मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट होता है. हम मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम से आता है. राइट. ओके. सो आई वुड लाइक टू गिव यू अनदर पोल, इज टू टेल मी आपके हिसाब से ट्रुथ क्या है. राइट. लेट्स लुक एट दिस पोल. I'll wait for few seconds, maybe 30-40 seconds quickly. What is truth for you? What I observe and can be proven आपके हिसाब से. What the book tells me, if you believe in a book. What an authority tells me, जो भी authority है वो आपको बताती है, या कुछ और, something different. I'm waiting. Okay, another few more seconds. So good, I'm receiving responses. Good to see you all participating.
ओके ओके, सो आपके लिए ट्रुथ अभी भी मेजॉरिटी के लिए द ट्रुथ इज व्हाट यू कैन ऑब्जर्व एंड विच कैन बी प्रूवन, राइट? सो साइंटिफिक माइंडसेट, वंडरफुल, दिस इज व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ टुडेज जनरेशन। और आजकल के जनरेशन नहीं, आजकल के समय की बात करेंगे तो हम जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं होती उसको ट्रुथ नहीं मानते, राइट? या जो चीज मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता वो ट्रुथ नहीं है, या जिसको ऑब्जर्व कर सकता हूं वही ट्रुथ है। ओके, गुड गुड, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, लेट्स सी। आई वांट कि आप किस तरीके से इवॉल्व करते हैं अपने साथ। मैनेजमेंट सूत्र, सूत्र इट्स लाइक फॉर्मूला। सो मैनेजमेंट का फॉर्मूला क्या है? जैसा आपका बिलीफ होगा, द काइंड ऑफ बिलीफ दैट यू हैव, वैसा ही आपका बिहेवियर होगा एंड वैसा ही बिजनेस कंडक्ट होगा। इट्स लाइक बिलीफ विल टेल व्हाई यू डू समथिंग, बिहेवियर इज हाउ यू डू समथिंग, एंड बिजनेस इज व्हाट, दैट मीन्स एग्जैक्ट जो फाइनली टेंजिबल बात आ रही है। बिजनेस इज मेजरेबल है, दिखता है, बिहेवियर भी मेजरेबल है, आप देखकर बता सकते हैं किसका बिहेवियर कैसा है। लेकिन बिलीफ एक ऐसी चीज है जो कि नॉन मेजरेबल है। इंपॉर्टेंट है या नहीं इसको हम देखेंगे अभी। बिलीफ बताता है आपका इंटेंट, बिहेवियर से डिसाइड होता है आपका टास्क, एंड बिजनेस इज द टारगेट फॉर विच यू हैव चोजन द टास्क, क्या काम कर लिया। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं मॉडर्न वेस्ट और इंडिया के बीच में। व्हेन आई से इंडिया, आई टॉक अबाउट इंडियन मैथोलॉजी। बिलीफ, मॉडर्न वेस्ट क्या मानता है कि पीपल, लोगों का बिलीफ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर दुनिया को चेंज करना है, चेंज मीन्स कंट्रोल करना है, तो आपको क्या करना होगा? दैट यू विल हैव टू डू इट विद बेटर रूल्स बेस्ड ऑन राइट बिलीव्स दैट क्रिएट गुड हैबिट्स। कमांडमेंट्स की बात करता है मॉडर्न वेस्ट। वेयरएज जो ट्रेडिशनल इंडियन बिलीफ है वो क्या कहता है? वो ये कहता है फियर स्टॉप्स पीपल फ्रॉम एक्सपैंडिंग देयर माइंड। डर की वजह से लोग अपना माइंड एक्सपैंड नहीं करते हैं, दैट मीन्स जैसे हैं वैसे ही रिजिड रहते हैं, इंक्लूडिंग अदर पीपल्स बिलीफ। वी नीड टू एक्सपैंड देयर माइंड रादर देन कंट्रोल पीपल अराउंड अस। सबके लिए खाने में आप सिमिलर प्रोपोर्शन डाल के दे दीजिए, कैसे मिक्स करना है, कौन से पहली चीज खानी है, कौन सी बाद में खानी है, दिस इज व्हाट लेट देम डू। दिस इज व्हाट इज ट्रेडिशनल इंडियन बिलीफ। कैन यू सी द एग्जांपल ऑफ फूड कैसे रिलेट हो रहा है फूड से, राइट? ओके, नाउ वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बिलीफ में बेसिकली जो सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है कि वेस्ट जो बिलीव करता है कि लाइफ एक ही है, हम एक बार ही पैदा होते हैं, एक बार ही मरते हैं, ना तो हम पहले थे ना हम बाद में हैं, यही लाइफ सब कुछ है। दैट इज द वेस्टर्न बिलीफ, राइट? और जो वेस्टर्न रिलीजन्स या बिलीफ सिस्टम है, फेथ है, उनमें ये बिलीफ डोमिनेंट है। और वो दो एक्सट्रीम्स में वो बिलीफ जाता है। सबसे पहला एक्सट्रीम क्या है? अथॉरिटी इज गुड, और दूसरा क्या है? अथॉरिटी इज बैड। दोनों एक्सट्रीम्स में वो बिलीफ जाता है। अगर अथॉरिटी बैड है, इसका मतलब आप स्केप्टिसिज्म, दैट मीन्स यू विल डाउट, यू विल रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड्स एंड किंग्स, एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट से आप उसकी तरफ जाएंगे। अगर आप फेथ की बात करते हैं, देन यू सबमिट टू द गॉड और किंग एंड देन यू वर्क टुवर्ड्स दैट वे। बट इसके मूल में, इसकी रूट में, द पॉइंट इज दैट यू हैव ओनली वन लाइफ टू लिव। ओके, सो वन लाइफ लीनियर अचीवमेंट। आपके सामने अगर आप स्क्रीन पे देखकर कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, इट्स लाइक सिकंदर, अलेक्जेंडर। सो अलेक्जेंडर जब इंडिया आया तो उसने नदी के किनारे एक साधु को देखा जो कि काइंड ऑफ नेकेड था, बट ही वाज सच सो ब्लिसफुल कि सिकंदर से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग देयर? ही सेड आई एम एक्सपीरियंसिंग नथिंग। उसको समझ में नहीं आया। सो साधु, दैट सीयर आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग हियर? ही सेड कि मैं पूरी दुनिया पर जीत हासिल करने के लिए निकला हूं।
and after some time, after a while, they both laughed. According to Alexander, कि ये यहाँ पर बैठकर कुछ भी नहीं कर रहा है, अपनी लाइफ खराब कर रहा है. According to that person, जो साधु है, उसके हिसाब से वो लाइफ जो है सिंगल लाइफ तो है ही नहीं, हमारी लाइफ तो है इनफाइनाइट. और क्योंकि इनफाइनाइट है तो इस एक लाइफ में चाहे आप पूरी दुनिया जीत लो, लेकिन अगर आप उसको इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्सक्यूज मी, 0. दैट मीन्स इस एक लाइफ में आप कुछ भी करो, आपकी लाइफ विच इज इनफाइनाइट, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. व्हाट डज इट मीन कि खाली बैठे रहो? नो, इट मीन्स इंट्रोस्पेक्शन. ऑब्जर्व व्हाट यू आर डूइंग. ऑब्जर्व मीन्स दिस. वेस्ट कैसे ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड को? इट्स लाइक एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही गॉड है, एक ही सिस्टम है और सेंट्रल ऑर्डर है. जबकि ईस्ट कैसे ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड को? डिफरेंट, मैनी आइडियोलॉजीज, मैनी गॉड्स, मैनी सिस्टम, पेरिफेरल ऑर्डर. पेरिफेरल ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऊपर ऊपर से बस एक कंट्रोल रखो और बीच में फ्रीडम प्रोवाइड करो कि वो कुछ भी कर सकते हैं. लेट्स लुक एट कि आप जिस भी सिटी में रहते हैं, अगर वो बहुत मॉडर्न सिटी है या ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, तो भी कोई ना कोई ओल्ड पार्ट ऑफ सिटी ज़रूर होगा. अगर आप वहाँ पर जाएं तो यू वुड सी कि वहाँ पर थोड़ा सा केओस लगेगा आपको, बट वो केओस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. एक ही सड़क के ऊपर आपको सारे सामान मिलेंगे, एक ही रोड के ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस, एस्टैब्लिशमेंट्स, टेम्पल, वर्क प्लेस एंड लॉट मेनी थिंग्स आर एट वन प्लेस ओनली और ऑन वन स्ट्रीट. स्ट्रीट्स भी स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रीट्स भी कर्व्ड हैं. अगर आप ऑब्जर्व करें, क्यों कर्व्ड हैं? कि हमें स्ट्रेट ऑर्डर, हमें मीन्स इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से हमें स्ट्रेट लाइन थिंग्स पसंद नहीं है. अगर आप कहीं ऐसा नहीं है तो प्लीज ऑब्जर्व अराउंड यू. आप जाकर देखिए, घर से बाहर निकलिए, ओल्ड सिटी में जाइए, ओल्ड प्लेस में जाइए. अगर आप वहाँ रहते हैं तो आपको मालूम होगा गलियाँ स्ट्रेट नहीं है, रोड्स स्ट्रेट नहीं है. दीज आर नॉट स्ट्रेट रोड्स. स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए हैं. दीज आर कर्व्ड. कर्व्ड मीन्स परमिशन है, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, राइट? लेकिन वेस्ट इस चीज को कैसे देखता है कि ये तो केओस है. वेस्ट क्या कहता है कि रूल्स होने चाहिए जो कि रैशनल पर बेस्ड हो. नहीं फॉलो करोगे तो रेप्रिमांड, दैट मीन्स पनिशमेंट, अदरवाइज रिवॉर्ड. क्योंकि पर्सनालिटी कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू वेस्ट, और हैबिट्स को चेंज करने की बात करता है वेस्ट. इंडिया, दैट मीन्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट मैथोलॉजी क्या बात करती है? इट टॉक्स अबाउट कि ओनली माइंड कैन बी एक्सपेंडेड, नेचर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, इसलिए बी माइंडफुल ऑफ इमेजिनेशन दैट एम्प्लीफाइज फियर, हेंस हंगर. दैट मीन्स जो फियर, उसको ऑब्जर्व कीजिए क्योंकि वो आपको लिमिट करता है. फियर को अगर आप लिमिट करेंगे सो दैट विल लीड टू पीस. देन द अदर कंप्लीट सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. Western mythology, Western business management talks about goal and individual achievements, whereas Indian belief system talks about observing other and including others in you. Right? जब हम बात करते हैं परमात्मा, it is like पर आत्मा, दूसरे की आत्मा, is like combining. योग की बात करते हैं हम, is for that because that brings happiness. तो टारगेट क्या है बिजनेस का? गोल इन टर्म्स ऑफ मनी, नंबर, अचीवमेंट, या पीस एंड हैप्पीनेस. दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव. अगेन एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ पे आते हैं. मैनेजमेंट एक्सप्रेशंस की तरफ अब हम ध्यान देंगे. सो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वेस्टर्न मिथोलॉजी किस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करती है विच इज गोल बेस्ड. जो इंडियन मिथोलॉजी है वो किस तरह का मैनेजमेंट क्रिएट करती है? गेज बेस्ड. क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है. सोच के देखिए कि आपने अपने गोल्स अचीव किए लेकिन पीस और हैप्पीनेस अचीव नहीं किया, सो फिर पीस और हैप्पीनेस अगेन आपके लिए एक गोल हो जाएगा. दैट विल बी अगेन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल थिंग्स. सो व्हाट विल हैपन? दैट विल बी साइक्लिकल. आप उसी में घूमते रहेंगे.
Whereas अगर गेज बेस्ड आपका अप्रोच है, so the purpose of doing business or transaction itself becomes happiness and peace. Okay, actually business है क्या? business management की बात करते हैं, business होता क्या है? Let's look at that. So business is basically transactions. Without transaction there is no business, right? So business में क्या होता है? Transactions होती हैं. किस तरह के transactions होती हैं? So transaction हो सकती है लक्ष्मी में, the currency of transaction. ट्रांजैक्शन हो सकती है दुर्गा में. नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग कि दुर्गा से कैसे ट्रांजैक्शन हो सकती है, सरस्वती में कैसे ट्रांजैक्शन हो सकती है. लेट्स लुक एट दैट. ये 3 जो देवियां हैं जो इंडियन मैथोलॉजी में जिनका मेंशन आता है, इनको हम बिलीव करते हैं कि ऐसा है. लेट्स सी, रिलेट करते हैं इसको बिजनेस के साथ. लक्ष्मी का ट्रांजैक्शन, लक्ष्मी सिंपली मनी, राइट, वेल्थ. तो उसका ट्रांजैक्शन होता है आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपने 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट खरीदा या सर्विस खरीदी या प्रोडक्ट खरीदा, चलिए मानते हैं. तो जिसके पास वो प्रोडक्ट था उससे वो प्रोडक्ट चला गया, आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया और मनी आपके पास से दूसरे के पास चली गई. इस पूरे प्रोसेस में जो ग्रोथ है वो 5%, 10%, 50% हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, राइट? क्यों नहीं होगी? बिकॉज 100 की चीज उसने 80 या 70 या हो सकता है 50 रुपीज में भी बाय की हो, आपको 100 दियो, तो उसके पास एक ग्रोथ हो गया 50 का. दिस इज व्हाट इट इज. अब हम बात करते हैं दुर्गा की. दुर्गा, कैन यू आई मीन रिलेट दिस वर्ड? दुर्गा इज फॉर दुर्ग. दुर्ग मीन्स किला, फोर्ट. नाउ दैट इज फॉर प्रोटेक्शन. अगर आप किसी को एनकरेज करते हो, उसके फियर को दूर करते हो, उसके फियर को दूर करते हो और उसको एनकरेज करते हो किसी चीज के लिए, सो व्हाट यू आर डूइंग इन दिस ट्रांजैक्शन, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग दुर्गा टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. आपके टीचर आपको एनकरेज करते हैं, कोई बात नहीं, बोलिए, आप गलती करेंगे, आई एम देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू. सो दैट पर्सन हैज गिवन यू प्रोटेक्शन. बट ये प्रोटेक्शन देने में, ये दुर्गा आपको देने में आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपको एक सिक्योरिटी फैक्टर आपका बढ़ा, कॉन्फिडेंस फैक्टर आपका बढ़ा. लेकिन क्या सेम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस जिसने आपको दिया उससे कम हुआ क्या? उससे कम हो गया क्या उससे? नो, दैट्स नॉट द केस. इनफैक्ट उसने जो आपको दिया, आपका इंक्रीज हुआ, उसका कम नहीं हुआ. कैन यू सी द डिफरेंस इन दिस ट्रांजैक्शन? ओके, लेट्स लुक एट सरस्वती का ट्रांजैक्शन. वेरी सिंपल. द गॉडेस ऑफ लर्निंग, सरस्वती. आपके पास कुछ नॉलेज है, आप किसी के साथ वो नॉलेज शेयर करते हैं. मेरे पास ये नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. क्या मेरी नॉलेज कम हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट. क्या आपकी नॉलेज इंक्रीज करेगी? ऑफ कोर्स यस. अच्छी बात एक और क्या होगी कि इस पूरे प्रोसेस में हम दोनों के सीखना कैसे है, हाउ डू वी लर्न, द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग. लर्निंग स्किल भी इंप्रूव हो गए, साथ साथ सिर्फ नॉलेज इंप्रूव नहीं हुई, लर्निंग स्किल भी इंप्रूव हो गए. कैसे लर्निंग स्किल इंप्रूव हो गए? इस तरह का जो हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, इसको कैसे यूज करेंगे इफेक्टिवली, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आपके एंड पर इस तरह के प्लेटफॉर्म से ज्यादा कैसे सीख सकते हैं, वो लर्निंग भी साथ साथ हो रही है. नाउ कौन सी ट्रांजैक्शन ज्यादा वैल्यूएबल है? मैंने से ज्यादा वैल्यूएबल है, आई थिंक तीनों तरह के ट्रांजैक्शंस वैल्यूएबल है. बट जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस मीन्स ट्रांजैक्शन. डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग बिजनेस ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी. जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जब आप किसी के साथ सिखा रहे हैं, किसी को हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी आप बिजनेस कर रहे हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. वहां पर ट्रांजैक्शन का करेंसी अलग अलग है. सो इंडियन माइथोलॉजी में बिजनेस को सिर्फ लक्ष्मी के ट्रांजैक्शन से नहीं देखा गया है, दुर्गा और सरस्वती के ट्रांजैक्शन से भी देखा गया है. एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि इसमें दुर्गा और सरस्वती के ट्रांजैक्शन को बहुत वैल्यू दी जाती है, राइट? इंटरेस्टिंगली, अगर आप सरस्वती की बात करें तो आप कोशिश करके देखिए, आप में से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा. आई एम गोइंग टू शेयर दैट, दिस इज माय एक्सपीरियंस, बट आई टोटली हैव फेथ कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि आप कोई भी चीज किसी को सिखाते हैं जो आपको आती है. सो इन दैट प्रोसेस आप उस चीज के बारे में, जो आपकी नॉलेज है, जो आप सिखा रहे हैं,
उस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपकी नॉलेज इंक्रीजेस मैनी फोल्ड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। आपका अगर मैथ्स अच्छा है आज, सो ध्यान से देखिए आपने किस किस को मैथ्स सिखाया था। जनरली किसी का भी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी एरिया ऑफ नॉलेज ले सकते हैं, वो तब तक बहुत अच्छा नहीं होता जब तक वो उस नॉलेज को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता और उसको सिखाने की कोशिश नहीं करता। So this is what is the understanding of this, or this is what is the meaning of Saraswati. Okay, let's look at that. But इस पूरे प्रोसेस में धर्म और अधर्म की क्या बात होती है? Let's look at that कि धर्म और अधर्म क्या है. Now, it is only humans those who have the capability of imagination. हम imagination जो है सिर्फ humans के पास है. उस इमेजिनेशन से आप क्या कर सकते हैं? अपने फियर और हंगर, डर और भूख। तो क्या डर और भूख बुरी चीजें हैं? इनफैक्ट डर और भूख, दिस इज व्हाट टू थिंग्स दैट ड्राइव द होल थिंग। यू विल से कि सर डर से भी पूरा ड्राइव होता है। लेट अस सी कि कैसे ड्राइव होता है फियर से। तो क्या किसी को फियर से ड्राइव करना चाहिए? दिस इज व्हाट इज अधर्म और धर्म आपको बताया जा रहा है। नाउ अधर्म इज, अगर आप एक्सप्लॉइट करते हैं किसी को, तो आप एज अ एनिमल, अगर मैं आपको एज अ एनिमल मानूं, बायोलॉजिकल बीइंग मानूं सिर्फ, और आप एक्सप्लॉइट करते हो किसी को, उसके फियर को एक्सप्लॉइट करते हो, सो दैट पार्ट इज अधर्म। व्हाट डज इट मीन? कि अगर आप कुछ भी काम, किसी के साथ ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ फियर, अपने फियर की वजह से, दैट इज गोइंग टूवर्ड्स अधर्म। बट जब आप किसी के साथ एम्पैथाइज करते हो, उसकी फीलिंग्स, उसके वर्च्यूज, उसकी फीलिंग्स, उसके पेन को, उसके फियर को कम करते हो, देन व्हाट यू आर डूइंग इज धर्म। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट अधर्म क्या है, धर्म क्या है। ओनली सिंपल थिंग टू कीप इन योर माइंड इज, जो आप कर रहे हो, क्या आप डर की वजह से कर रहे हो? अगर हाँ, दैट इज फियर। लेकिन अगर आप किसी के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो उसके साथ एम्पैथाइज, उसको हेल्प, सपोर्ट, ग्रो करने के लिए कर रहे हो, दैट इज धर्म। राइट? ओके, कर्म क्या है? लुक एट दैट। कर्म के दो मीनिंग हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ये तो उसका कर्म है, उसके साथ ऐसा होना ही था, तो समथिंग लाइक डेस्टिनी। फिर हम ये भी कहते हैं कि कर्म ही आपका भाग्य डिसाइड करता है। सो देयर आर टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ कर्मा। इट इज लाइक वॉकिंग, जैसे हम चलते हैं। सो जब हम चलते हैं 2 फीट पर, जब हम चलते हैं, राइट, सो एक बार 1 फीट फिक्स्ड होता है और दूसरा फीट फ्री होता है। जो फीट फिक्स्ड है वो आपकी डेस्टिनी है, जो फीट फ्री है वो आपका कर्म है, एक्शन है। जो फुट आपका फिक्स्ड है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, उसको कहीं मूव नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज आपका दूसरा फुट फ्री है टू मूव समवेयर, दैट इज द एक्शन। सो कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट होता है। सो नेवर टेक दिस माइथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के इंडियन माइथोलॉजी में सब कुछ कर्म के ऊपर डिपेंड है, या कर्म पे या भाग्य पे डिपेंड है। सो देयर इज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग, एंड इसको बिजनेस में हम कैसे अप्लाई करेंगे, लेट अस सी। ठीक है, पता है कि आपका कर्म जो है वो धर्म है या अधर्म है। सो यू मे बी वंडरिंग कि सर हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर धर्म और अधर्म की कैसे बात करेंगे? सी बेसिकली आपका हैप्पीनेस और पीस आती है जब जो आप कर्म कर रहे हो वो एज पर धर्म है। नाउ धर्म इज नॉट रिलीजन, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं यहाँ पर किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मैथोलॉजी धर्म किसको कहते हैं, या धर्म जो कर्म है आपका वो धार्मिक है या नहीं है। इट इज, if you are doing it with fear, then it is a dharma. If it is you are doing it with empathy, that is dharma. This is what is the simple understanding. Now fear से क्या होता है? भय से लगती है भूख। हमें जो भूख लगती है, भूख किस चीज की लगती है? खाने की। क्या सिर्फ खाने की भूख लगती है या और चीजों की भी भूख लगती है? और चीजों की भी भूख लगती है। जैसे भूख लगती है टू एक्सेल, सक्सेस की भूख लगती है। भूख लगती है कुछ अच्छा काम करने की भूख लगती है। भूख लगती है किसी को नीचा दिखाने की भूख लगती है। सो ऑल दी अर्जेस, जो हमारी अर्ज हैं, उनको हम कहते हैं भूख, हंगर, राइट। भय, ये सब कहाँ से आते हैं? फियर से आता है।
राइट? जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, कुछ खाते हैं, उसको भोग देते हैं। वो भोग देने से पहले कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा, उस कंज्यूम को हम कहते हैं बलि देना। जब हम भोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे कुछ कर्म डिसाइड होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, एंड देन अगेन दिस साइकिल कंटिन्यूज। नाउ लुक एट दिस इंटरेस्टिंग थिंग, इमेजिनेशन। मार्केट प्लेस में क्या है, लोगों में क्या है, भय भी है और भूख भी है। आप कौन सी बलि से उसको सेक्रीफाइस करते हो, उस सेक्रीफाइस को सेटिस्फाई करते हो, ये आपकी इनोवेशन है। बिजनेस में इनोवेशन इज टू डिसाइड व्हाट बलि इज गोइंग टू सेक्रीफाइस देयर फियर एंड हंगर। उसके लिए क्या क्रिएट करते हैं हम, एक प्रोडक्ट, एक मार्केट प्लेस, जहां पर क्या होता है, कंजम्पशन होता है और कर्मा जनरेट होता है, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। सो कैन यू सी कि ये कोई हवाई बातें नहीं है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, राइट? Why I'm sharing all these things with you? Because जब आप MBA करेंगे, जिसके के लिए आप प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग इस समय डाउटफुल बैठे हों कि हमें MBA करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसा पीरियड है, क्या करेंगे इस पीरियड में। नाउ आई वुड लाइक टू एड्रेस फ्यू ऑफ योर फियर्स, राइट? इन दैट केस, अगर आपको कोई डाउट है, कोई फियर है आपका, और आप चैट में मुझे कम्युनिकेट करते हैं, I'll be able to take that also. For that we have kept थोड़ा सा बाद का टाइम हमने रखा हुआ है, we'll take that. Okay, we'll do that. Now the point here is कि जो fear है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, let us see कि इस particular time period में, जब कोरोना की वजह से पूरा लॉकडाउन है, तो ये जो fear है, ये satisfy किससे होगा? That means इसकी वजह से जो हंगर क्रिएट हो रही है, उसमें इनोवेशन क्या यूज कर रहे हैं। अब आपके सामने है कि आपका सेशन फिजिकली अगर शुरू नहीं हो पाया, तो हम क्या कर रहे हैं, उस सेशन को इनोवेशन के थ्रू हम उस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं वर्चुअल मोड में। सो इज दिस क्रिएटिंग अ मार्केट? ऑफ कोर्स। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग, innovation is taking place, and in the marketplace the consumption is happening. So you got to become innovative to see कि इस particular period में आप किस तरह से maximum benefit ले सकते हैं। MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? To my understanding, आज के समय में MBA requirement या management learning requirement is the most important thing to do. बिकॉज इस समय जो चैलेंजिंग टाइम है, जो आपकी लर्निंग इस पर्टिकुलर पीरियड में प्रैक्टिकली हो सकती है, वो लर्निंग आने वाले समय में पूरी आपको काम में आने वाली है। कैसे काम में आने वाली है? अब से पहले जितने लोगों ने MBA किए हैं, उन्होंने किसी भी इस तरह के सिनेरियो से के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है। Whereas now with this period you will be fully trained to how to tackle situation, जो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और इस तरह की सिचुएशन जो कोविड-19 की वजह से है, यू कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले कम से कम 3, 4, 5 साल के लिए ये सिचुएशन रहने वाली है। सो आपकी अभी की जो लर्निंग है वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होगी, राइट? सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू डू MBA एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फर्दर पुणे जाकर करना या किसी और सिटी में जाकर करना, सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं, अब पूरे के पूरे वर्चुअल मोड में जा रहे हैं। डज इट मीन कि आपकी फिजिकल क्लासेस होंगी ही नहीं? ऑफ कोर्स होंगी व्हेन द टाइम वुड परमिट, लेकिन जो वर्चुअल मोड है वो पूरी तरह से क्लासेस के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। दैट मीन्स अभी आप सोच के देखिए कि ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट एंड सो मैनी, तो क्या बाकी बिजनेसेस नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सो देयर इज नाउ एक ही शॉपकीपर है, एक ही प्रोडक्ट है, आपको ऑफलाइन मार्केट प्लेस में भी मिल रहा है, आपको ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इन सब पे भी मिल रहा है। दैट मीन्स these two modes are to be integrated. So for your learning process and the way you will be conducting your businesses in future has to be a very coherent and cohesive gelling of these two. So please
इस फियर को, इस डर को अपने दिमाग से निकालिए। मैंने इसे डर को निकालिए। हाउ डू यू टेक द फियर आउट? इट इज बाय टेकिंग स्टेप्स which are towards a justified way of dealing with the things, right? Fear, डर से दो चीजें हो सकती हैं, या तो डर के हम रुक जाएं, या हम डर से, ऐसा नहीं डर से बाहर आना है, डरने के साथ साथ हम उस डर के कारण जो सिचुएशन है उसको कैसे टैकल करें। आप सोच के देखिए कि जितने भी फॉर्मूला 1 रेसर्स होते हैं, सब लोग जो है हेलमेट लगाते हैं कार के अंदर। सोचो कार में हेलमेट लगाता है कोई, प्रोटेक्टिव सूट्स पहनते हैं, तो क्या वो लोग डरते हैं? क्या वो डरपोक हैं? आई वुड से यस, कि हाँ वो डरपोक हैं। तो क्या उनका डर उनको फॉर्मूला 1 रेस में पार्टिसिपेट करने से रोकता है? नो, उनका डर उनको रोकता नहीं है। उनका डर उनको ये बताता है कि अगर मुझे इस तरह के चैलेंज को फेस करना है तो मुझे ये सब प्रोटेक्शंस के साथ करना होगा। सिमिलरली, अगर आज आपके दिमाग में ये डर है किसी भी तरह का, कोई भी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज ये सिचुएशन इस तरह की है, आप अपने सेशंस शुरू करने जा रहे हैं, तो मुझे डर है, डिलेमा है, क्या होगा या नहीं होगा। तो उस केस में डर की वजह से या तो आप बैठ सकते हैं एंड लेट सी कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, फेंस पे बैठ के देखिए जब दूसरे लोग करेंगे और उसके बाद आप उसको फॉलो करेंगे, ऑफ कोर्स दे वुड बी, जो लोग पहले कर रहे हैं उनको एडवांटेज रहेगा, राइट? या इस डर के सिचुएशन में अगर मुझे एक्शन लेना है तो मुझे क्या क्या प्रोटेक्शंस लेने होंगे, राइट? सो माय आइडिया ऑफ सेइंग इज प्लीज डू नॉट सिंपली सिट बिकॉज ऑफ योर फियर, सी फॉर इट कि फियर को टैकल कैसे करना है, डर दूर नहीं भगाना है। फॉर्मूला 1 रेसर्स या बाइक जो चलाते हैं फास्ट, उन सबको डर होता है, इसीलिए वो प्रोटेक्शन यूज करते हैं। आप भी प्रोटेक्शन यूज करके इस तरह के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आगे बढ़िए, राइट? ओके, हंगर, किस तरह की हंगर हो सकती है? दो तरह की हंगर, जैसे मैंने भी आपको बताया था, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। फिजिकल हंगर से क्या होगा? एपेटाइट, भूख लगेगी, फूड चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी अ फियर ऑफ डेथ। मेंटल हंगर कैसी हो सकती है? बोर्डम, उसके लिए आपको क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, एंड अगर नहीं मिलेगा सो देयर विल बी अ फियर ऑफ मीनिंगलेसनेस। ध्यान से देखिए, ये अगर आपको याद आ रहा है, एक समुद्र मंथन की कहानी है, उसमें अमृत निकलता है, तो देवताओं को क्या मिलता है? अमृत। उनका फियर ऑफ डेथ चला गया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी फियर, मेंटल फियर, वो अभी भी है, जो कि अमृत से दूर नहीं हुई, राइट? सो देवों को क्या मिला? अमृत, that gave them immortality, denied meaning, consumed by boredom. असुरों को क्या मिला? They were denied immortality. अब वो immortal नहीं रहे, लेकिन उनको पर्पस मिला, एंड वो पर्पस now they are consumed by ambition. So देवताओं को अगर आप देखते हैं तो क्या होता है? स्वर्ग में देवता जो है गाने सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बिकॉज दे आर बोर्ड, राइट? असुर क्या कर रहे हैं? चढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाई का काम कर रहे हैं, एम्बिशियस है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंगर। बिजनेस इज अबाउट चर्निंग। एक फोर्स है, एक काउंटर फोर्स है, समुद्र मंथन आपके सामने, ठीक है? और हमें बैलेंस क्रिएट करना है। लीडर के क्या टूल्स और एट्रीब्यूट्स हैं? लीडर देखते हैं चतुर्भुज, एक पिक्चर है आपके सामने, विष्णु जी इस तरीके से दिखाए जाते हैं माइथोलॉजी में। एक उनके पास मेस है, गदा, टू डिसिप्लिन, एक लीडर का रोल है। व्हील है, व्हील का मतलब है कंटिन्यूअस रिव्यू। देन क्वांच इज फॉर कम्युनिकेशन। एक अच्छा लीडर हमेशा ही एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। आप अपने आसपास पॉलिटिकल बिजनेस लीडर्स को देखिए और ये देखिए कि वो किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। किस लीडर को आज अप्रिशिएट किया जाता है, उसके कम्युनिकेशन को देखिए, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, किस किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लीडरशिप। एंड देन देयर इज लोटस फॉर एप्रिसिएशन। दोनों का बैलेंस है, डिसिप्लिन भी करना है और एप्रिसिएशन भी करना है। सो ये चार रोल्स, दीज आर टू बी गवर्न, दीज आर टू बी मैनेज्ड बाय अ लीडर। ओके, बैलेंस क्रिएट करना है कैसे? जैसे लॉन्ग साइट और शॉर्ट साइट। हमारे
जो स्क्रिप्चर्स है, मैंने इससे स्क्रिप्चर्स माइथोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें भगवान विष्णु की अगर हम बात करें तो उनके पास एक वाहन है गरुड़, और एक उनका शेष नाग है, दैट मीन स्नेक। तो शेष नाग है वो शॉर्ट टर्म विजन वाला है, और जो गरुड़ है वो लॉन्ग टर्म विजन वाला है, वो ऊपर से उड़ता हुआ सब कुछ देख सकता है, ब्रॉड व्यू। तो हमारा व्यू कैसा होना चाहिए, लॉन्ग साइट होना चाहिए, शॉर्ट साइट होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। स्नेक जो है वो कैच करता है अपने प्रे को, वो लॉन्ग साइड से नहीं कर सकता, वो शॉर्ट साइड से ही करेगा, उसके सामने जो रहेगा उस पर फोकस करके, राइट। जैसे अभी आपके सामने क्या काम है कि मुझे अगर एमबीए करना है तो मुझे शॉर्ट टर्म में अभी क्या करना होगा, एनरोल करना होगा, प्रोग्राम के लिए जाना होगा, या ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी, वो शॉर्ट टर्म है। बट वो शॉर्ट टर्म विजन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइंड है, जो कि गरुड़ दृष्टि है, तो आपका जो रिजल्ट है वो काफी इफेक्टिव आएगा। सो इस समय शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म चैलेंज है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एपिडेमिक, लॉकडाउन, स्लो डाउन, सो मेनी थिंग्स। सो क्या हमें इस समय क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स हमारी जो दृष्टि है वो इस समय पर क्या करने की जरूरत है, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म, शॉर्ट साइट, वो जरूरी है, बट इट हैज टू बी बैलेंस्ड विद योर लॉन्ग टर्म विजन। एक्चुअली आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, राइट। सो आप सोचते हो कि नहीं मुझे इस समय तो क्या करना है, मैं आराम से खाली बैठता हूँ, एक साल के बाद सोचेंगे, राइट। सो दैट कुड बी अ शॉर्ट टर्म विजन, बिकॉज आपने अभी क्या किया, सिर्फ अभी की सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को टैकल किया। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, दैट आई हैव टू क्रिएट वेल्थ फॉर माई सेल्फ, अ करियर फॉर माई सेल्फ, इन दैट केस आज की सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन है, किस तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, किस तरीके से मैं अपना एमबीए या अपने आप को ग्रूम कर सकता हूँ, वो सब आप शॉर्ट टर्म में इनबिल्ट कीजिए एंड देन प्रोसीड, राइट। ओके, टैंजिबल इंपॉर्टेंट है या इनटैंजिबल, ब्रांड्स कैसे काम करते हैं। एक आईफोन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो क्या वो मटेरियल क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी है कि बहुत एक्सपेंसिव है, नो, उसके साथ उसकी एक इनटैंजिबल वैल्यू भी जुड़ी हुई है। तो क्या मैं अपनी लाइफ में सिर्फ डिग्री ऐड कर रहा हूं या इनटैंजिबल वैल्यूज भी ऐड कर रहा हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। जैसे आप सोच के देखिए, गायों को चराने के लिए श्री कृष्ण लेकर जाते हैं, सो टैंजिबल क्या है कि उसको घास खिलाने के लिए लेकर जाना है। इनटैंजिबल क्या है, गायों के लिए और क्या बेनिफिट मिल रहा है इनटैंजिबल, कि वो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर अपने आप को एंजॉय भी करते हैं, राइट। नाउ दिस एंजॉयमेंट हेल्प्स टैंजिबल प्लस इनटैंजिबल। सोच के देखिए, अगर श्री कृष्ण उनको सिर्फ बांसुरी सुनाए और घास चराने ना लेके जाएं, तो थोड़े समय तो अच्छा लगेगा, बट दैट डजंट वर्क। सो व्हाट्स रिक्वायर्ड इज दिस। इसका रिवर्स क्या हो सकता है कि सिर्फ घास खिला दीजिए, राइट, बांध के रखिए, घास खिला दीजिए। वी ऑल नो द बेस्ट रिजल्ट्स कम व्हेन टैंजिबल मीट्स इनटैंजिबल। सो आप भी अपने मैनेजमेंट प्रोसेस में देखिए कि मैं क्या सिर्फ रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ टैंजिबल, या इनटैंजिबल रिजल्ट्स भी साथ साथ आ रहे हैं। आप इस माहौल में जो सीखेंगे वो लर्निंग प्रोसेस इज योर इनटैंजिबल, राइट। टैलेंट इंपॉर्टेंट है या लॉयल्टी, टैलेंट इंपॉर्टेंट है इन टाइम्स ऑफ स्केर्सिटी, जब आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, और लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इनसिक्योरिटी, जब आपको पावर चाहिए। इसीलिए इंडियन मिथोलॉजी में काओ और डॉग कई दफा आपको इनके स्टोरीज सुनने को मिलेगा, राइट। ओके, लेट मी मूव टू अनदर पोल्स। ठीक है, लेट मी सी, एक छोटा सा पोल मैं दे रहा हूं आपका पार्टिसिपेशन के लिए, टू वांट टू सी कि आपकी परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड कुछ चेंज हुई है क्या इस लॉकडाउन के पीरियड में। मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, आपका जो पोल है अब लाइव है। सो हैज योर परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू चेंज रिसेंटली इन द पीरियड ऑफ COVID-19 लॉकडाउन। Yes, a lot, yes, a little, not at all, can't say. 4 ऑप्शन है। I suggest, rather I appeal कि आप क्विकली आप इसमें पार्टिसिपेशन कीजिए। क्या लगता है कि आपकी जो परसेप्शन है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, दुनिया जो आपके चारों तरफ की है, उसके बारे में कुछ चेंज हुई है कि नहीं।
पहले जिसको हम जॉब सिक्योरिटी मानते थे, क्या वो आज उस तरह की जॉब सिक्योरिटी या उस तरह की जॉब्स ही अगर हम सोचें या उस तरह का करियर ही आज की डेट में रेलेवेंट रह गया है या नहीं, राइट? सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपकी परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू हैज चेंज्ड रिसेंटली. So now when the perception has changed, I suggest that your action should be based on your latest perception, right? कि आपको क्या लगता है कि अगर दुनिया बदली है तो मुझे किस तरीके से बदलने की जरूरत है? बदलने की जरूरत है, रुकने की नहीं है, राइट? ओके, लेट्स मूव फर्दर. रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या ट्रांजैक्शन? जब हम बिजनेस वर्ल्ड में हैं तो रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है और ट्रांजैक्शन भी, राइट? दोनों ही इंपॉर्टेंट है. रिलेशनशिप में कौन आता है? मी एंड यू. ट्रांजैक्शन में क्या आता है? माइन एंड योर्स. कैन यू सी कि ये सब जो है आपको लगेगा ये कॉमन सेंसिकल है. यही कॉमन सेंसिकल सोच जो है, बिलीफ सिस्टम जो है, हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज आपके अंदर इनकलकेट करती है, राइट? ओके, लेट्स लुक एट कि ये ट्रांजैक्शन या जो हमने देखा था रिलेशनशिप, ये रामायण में कैसे आता है. तो हनुमान ने क्या बिल्ड किया राम के साथ? हनुमान बिल्ट अ रिलेशनशिप. सुग्रीव ने क्या बिल्ड किया राम के साथ? ही बिल्ट अ ट्रांजैक्शन. क्या ट्रांजैक्शन थी? कि अगर आप बाली से मुझे मुक्ति दिलाओगे तो मैं अपनी सेना को, अपने बानरों को आपके साथ दूंगा. राम ने क्या किया? राम डिड बोथ. राम ने हनुमान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया विच वाज लाइक लॉन्ग लास्टिंग. सुग्रीव के साथ ट्रांजैक्शन की जो कि उस समय की जरूरत थी, राइट? नाउ कॉमन सेंसिकल अगर आपको इस तरीके से लग रहा है तो दैट मीन्स कि इंडियन मैथोलॉजी की जो बिलीफ सिस्टम है वो आपके दिमाग में और अच्छे से फिक्स हैं. बट आई वांट कि जब आप मैनेजमेंट स्टडी करें, बुक्स को स्टडी करें, तो ध्यान से देखें कि क्या जो आप सीख रहे हैं वो इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से रिलेट करता है. अगर नहीं तो ये एक ऑल्टरनेटिव है और देखिए कि उस सिचुएशन में आपके लिए क्या अच्छा है, राइट? सो रूल्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? ऑफ कोर्स जब हम स्टूडेंट्स हैं तो रूल्स बुरे हैं, जब हम टीचर्स हैं तो रूल्स अच्छे हैं. नाउ दैट्स नॉट ट्रू. सो बेसिकली रूल्स को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं. रूल्स को मैं यूज कर सकता हूं डोमिनेट करने के लिए. रूल्स को मैं यूज कर सकता हूं सर्व करने के लिए. रूल क्या था? प्राण जाए पर वचन न जाए. सो राम ने क्या किया? वचन को लिया और सर्व किया. दैट मीन्स ही सर्व्ड दैट रूल. उसने रूल को, राम ने रूल को डोमिनेट करने के लिए यूज नहीं किया, राइट? फर्दर एक दक्ष की कहानी आती है माइथोलॉजी में, जहां पर दक्ष जो है बहुत ही रूल ओरिएंटेड था और वो रूल के हिसाब से चलता था. तो किसी इंसिडेंट की वजह से शिवजी उनके सिर को काट देते हैं बिकॉज ही वॉज टू मच यूजिंग रूल्स एंड देन वॉज एक्चुअली डोमिनेटिंग पीपल. लेट्स लुक एट, अगर महाभारत की बात देखें तो आपको मालूम होगा कि दुर्योधन डिमांड करते हैं कि ये राज्य मुझे मिलना चाहिए क्योंकि एज पर रूल ये मेरा है. रूल पे डिस्प्यूट हुआ, थोड़ा सा लैंड दे दिया, उसके बाद जुआ हुआ, उसके बाद अज्ञातवास हुआ, फिर से वापस आए. तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि मैंने जो है तुमको पहचान लिया था अज्ञातवास में एक दिन पहले ही, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अज्ञातवास. पूरा जो वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र है इज बिकॉज ऑफ कि एक दिन पहले एज पर रूल अज्ञातवास पीरियड खत्म होने से पहले मैंने पहचान लिया था, तो एज पर रूल अब आप फिर से अज्ञातवास में वापस आएंगे. जबकि बिकॉज ऑफ सम कैलकुलेशन, अदर कैलकुलेशन ऐसा नहीं था. तो इट वाज ऑल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एम्पैथाइजिंग समथिंग. तो हम रूल्स को यूज कैसे करते हैं? डोमिनेट करने के लिए या सर्व करने के लिए, राइट? जैसे आपके सामने कृष्ण ने क्या किया था और दुर्योधन ने क्या किया था. तो क्या कृष्ण ने रूल नहीं तोड़े? आई वुड से कृष्ण ने रूल्स को बेंड किया, सिचुएशन के हिसाब से बेंड किया. लेकिन वो जो बेंड किया किसके लिए किया? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने सभी रूल्स को रिजिडली फॉलो करने की कोशिश की सो दैट कि उसका अपना फायदा हो सके. क्लियर?
लेट्स सी, बात करते हैं तो रूल्स अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है तो बहुत सारे रूल्स नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रही है, जब आपका जीवन शुरू होता है, राइट, सो बहुत सारे रूल्स नहीं होते, आप बहुत सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, इन अ सेंस कि आप बहुत एंथुजियास्टिक होते हो, आप ये भी एक्सपेरिमेंट करते हो, वो भी एक्सपेरिमेंट करते हो, ऐसा भी करते हो, वैसा भी करते हो, बिकॉज दैट्स द स्टार्ट। वहां पर काम मीन्स डिजायर टू डू समथिंग वो डोमिनेट करती है। फिर जैसे जैसे पढ़े होते हैं तो फिर काम के साथ यमा इज द गॉड ऑफ डेथ। इनफैक्ट यमा इज द गॉड ऑफ अकाउंटेंसी ऑल्सो। सो इंटरेस्टिंगली अकाउंटेंसी मतलब हिसाब किताब रखने वाला। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम चीज़ों का हिसाब किताब रखने की जरूरत होती है, करियर बिल्ड करना है, ये करना है, वो करना है। रूल्स एंड काम डिजायर ये दोनों डोमिनेट करते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो डिजायर बड़ी होती है, रूल्स अभी भी सबसर्विएंट होते हैं, रूल्स नीचे ही रहते हैं, तो भी सक्सेस मिलती रहेगी। जब भी रूल्स जो है डोमिनेट करने लगेंगे, रूल के हिसाब से चलो, ऐसा करो, नया कुछ मत करो, नया मत सोचो, सिर्फ रूल के हिसाब से काम करो, यही रूल फॉलो करना है, ऐसा ही करना है, तो आपकी सक्सेस डिक्लाइन करेगी। क्योंकि क्रिएटिविटी, नया सोचना, कुछ नया एक्साइटमेंट लाना, वो सब कुछ कम होने लगेगा। और जब ऐसा हो कि सिर्फ रूल्स ही रह जाएं, ये कब होते हैं? जब हम बस एक बंधे हुए लकीर की फकीर की तरह ही काम करते हैं, तो हमारा एंड होता है, लाइफ का एंड होता है, ऑर्गेनाइजेशंस गिर जाती हैं, कुछ न्यू, कुछ इनोवेट नहीं करते। आप अपने आसपास देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, आज टेस्ला की बात करते हैं तो इट्स अ बूमिंग सक्सेस। व्हाई? दे डिफाइड रूल्स। हाउ दे डिफाइड रूल्स? अभी तक क्या था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कोई भी प्राइवेट कंपनी दिमाग में ही नहीं होती थी, वो जाने की कोशिश ही नहीं करते थे। बट देन टेस्ला, दे डिड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, दे डिड इलेक्ट्रिक कार्स। नाउ टेस्ला इज बूमिंग। क्यों बूम कर रही है? क्योंकि डिजायर टू डू समथिंग, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो रूल को तोड़ रहे हैं, दे आर फॉलोइंग रूल्स, लेकिन रूल्स को फॉलो करना इज बिलो द डिजायर टू डू समथिंग। तो उसके लिए वो नए रूल्स बना रहे हैं, रूल्स को मॉडरेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, चीजों को उन चीजों के हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। जैसे कृष्ण ने रूल्स को, आई वुड से, बेंड किया, तोड़ा नहीं बट बेंड किया, नई इंटरप्रिटेशन लेकर आए। सो अगर आप भी अपनी लाइफ साइकिल में कुछ अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, सो डोंट जस्ट बी बाउंड बाय सिंपल रूल्स, look at new definition of rules, look at new interpretation of rules, and try to keep your desire to move ahead in life above following rules. सिर्फ सिक्योरिटी को फॉलो नहीं करें, राइट? रूल मतलब सिक्योर, ऐसे ही चलना, राइट? डिजायर मीन्स टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। सो दिस इज व्हाट इज दिस। अगर ध्यान से देखें तो पूरे जो युग आते हैं वो भी इसी तरीके से आते हैं। कलयुग में डिक्लाइन होता है, कृत युग, क्रिएशन युग्स, उसमें स्टार्टअप्स होते हैं, त्रेता युग में स्टेबलाइजेशन होता है, द्वापर युग में चैलेंज आते हैं, और कलयुग में फिर डिक्लाइन होता है। ये साइकिल मूव करती रहती है, ये हमारी लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, राइट? ऑल दिस विच आई टोल्ड यू नाउ, ये सब लेसन्स इन टर्म्स ऑफ कि आप 1 2 3 टेंजिबल लेसन्स की तरह इसको अपने पास लिखेंगे, 1 मैंने ये सीखा, 2 ये सीखा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आप बिजनेस को देखें, बिजनेस स्टडी करें, MBA प्रोग्राम में जो भी कुछ करें, फर्दर अपने करियर में उसको अप्लाई करें, देखते चलें कि क्या हम अपनी माइथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के साथ इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। ऐसा कारण क्यों? सोच के देखिए। अभी भी हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो इनफाइनाइट लाइफ्स के हिसाब से चलता है, कि हमारी लाइफ एक नहीं बहुत सारी है। आप जो भी मर्जी कहें कि इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ है या नहीं है, लेकिन अभी भी हम इस बिलीफ सिस्टम के साथ जीते हैं, क्योंकि यही हमारा कल्चर है। नाउ, क्या ये कल्चर बुरा है या अच्छा है? आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारा बिलीफ सिस्टम जिन चीज़ों के साथ कोहेसिव है, अगर हम उन सब चीज़ों के साथ चलेंगे तो chances of becoming successfully happy and peaceful
What I'm saying, successfully, happy and peaceful is going to be high, right? Now all these things जो मैंने ली हैं and much more I have learned from Dr. Devdutt Patnaik. He is doctor by profession, means doctor by training, but he is a business mythologist. And उनकी एक बहुत famous book है Business Sutra. The way you will be studying your MBA program, I suggest कि आप इस book को self reading के point of view से include करें और साथ साथ देखते चलें. I strongly recommend you, अगर आप MBA प्लान कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, this is the book that you must read before you actually plunge into your career. Right? With this, I am concluding my session. I am opening a session for question and answers. Can I request Mr. Balkrishan to moderate the session and then move for question and answers? Just give me a moment, Mr. Arora. Please. The presentation is done, Yeah. right? Shall I stop it? Yes. Okay, so I have a couple of Please. questions for you. The first one is if you can throw some light on three things called trust, belief, Yes. and faith. Now, there is a limitation of converting these things in a different language. Whenever I use, it's like, जैसे simple हम बात करते हैं religion. So if we look at any Indian language की उसका religion का Indian language में कौन सा word है? So बहुत close जो word आता है वो धर्म आता है. But then धर्म is not religion. धर्म is like it's like जैसे पानी का धर्म है बहना. It's Nature. like nature, the property. So तभी कहते हैं कि अगर आप धर्म के हिसाब से काम करोगे, that means if you work the way your nature is, human nature is to empathize with others, so that is called dharma. उस तरीके से जाएंगे. Now the word trust, faith and belief, these are like quite intermixing words. But यहाँ पर मैं belief को इस तरीके से बताना चाहूँगा. This is something that you are not born with, but because of the cultural influence you start inculcating in you. So that is belief. Now trust is something, generally हम trust की बात करते हैं तो किसी चीज में trust होना, किसी person में trust होना. That also comes from belief. But belief is a very broad, I would say broad base, because belief is something जो कि आप unconsciously या subconsciously rather आप gain करते हैं through your cultural upbringing. Whereas trust बहुत दफा belief के साथ आपके रीजन भी कई बार जुड़ जाते हैं, आपके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जुड़ जाते हैं. Whereas trust, belief is more of cultural. Okay. So shall I move to the next question? Yes. Okay. So you said dharma is nature, Yeah. right? We're talking about the property. Yes. So in that way, there are three kind of people. That is on the basis of what I have studied, what I Yeah, have yeah. researched. Mhm. So one is Sadgun, Okay. Rajogun, Tamogun. Yes. Accordingly, we bifurcate people. We see Yes. nature of people. Can you throw some light on that also? See, when it comes to these different gun, so this is again the state of mind. Now, these are not properties of our physical being. These are the properties of our mind. At some point of time, my mind could be in सतोगुण. आज मेरा जो है मैंने किसी को किसी नीडी की हेल्प की. So when I did that, I felt good because I could empathize with the need or the suffering of that person, and I helped that person. Now at that point of time, my mind or my action was of सतगुण. एक 2000 रुपए का नोट मुझे कहीं पे गिरा हुआ दिखाई दिया एंड मेरी कड़की चल रही है, तो somehow I tried to grab it. Now I am in tamogun. Same person can do the two things. So it is not something in a very rigid sense. So these are states of mind. Now how do I that further take it states of mind? आप बहुत ambitious हैं, कोई challenge लेना चाहते हैं, आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, आपका रजोगुण है. So according to stages of our life, ये गुण बदलते रहते हैं, person to person भी change होते हैं.
वी नीड टू बी ऑब्जर्वेंट कि इन सभी चीजों में जब भी हम कर रहे हैं तो जो हमारा एक्शन है इट इज टुवर्ड्स सतगुण, पहली चीज, फ्रॉम तमस टू सत. बट सम टाइम रजोगुण इज इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड है, looking at the state of affairs that you are dealing with, right? कुछ केसेस में जैसे लॉकडाउन हुआ लेकिन आप तो बहुत रजोगुण वाले हैं, तो क्या होगा कि आप जो है बिल्कुल यू विल स्टार्ट गोइंग आउट, सोशलाइज विद पीपल, गोइंग आउट एंड डू थिंग्स. लॉकडाउन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रजोगुण वालों के से हुई है. जो तमोगुण वाले थे दे वर मोर हैप्पी, ओके ठीक है सोए रहेंगे बैठे रहेंगे, राइट? सो समटाइम यू विल हैव टू रियली टेक केयर ऑफ योर माइंड and then bring it to that kind of gun ki jo ki aapke liye important hai. So these are states of mind, tamogun, rajogun, satogun. Iske bare mein again detailed, I'll be very happy in introducing that book. I would strongly recommend. That book is very exhaustive और उसमें काफी अच्छे से इन सब चीजों के बारे में बताया. Right. So next question is related to karma. Yeah. People always have misconceptions of law of karma. So if you can talk about that also. Okay, if I ask you कि is this law of karma, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, it is something like कि जैसा बोगे वैसा पाओगे, is it law of karma? I don't think so. Good, but most of us would think like this, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, as you sow so shall you reap, right? But this is not Indian mythology, it is not karma. सोच के देखिए, it is like something मैंने किसी it is something like मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ऐसा हम बोलते हैं. Again, this is not karma. So karma is whatever I do, it will have its consequences and you will have to bear the consequences. This is what is karma. Now let us look at this कि अगर मैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक का ज्यादा यूज करता हूं तो आई एम क्रिएटिंग कर्मा. तो चलिए मान लेते हैं कुछ समय के लिए मैंने उसको डिस्पोज करके मैंने जो है कचरे वाले डब्बे में डाला और बाहर फेंक दिया, चला गया. बट वी ऑल नो दैट आफ्टर सम टाइम इट गेट्स मल्टीप्लाइड और घूम फिर के वो वापस मेरे पास ही आता है. सो दैट पॉल्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट कर्मा विच आई जनरेटेड. For every karma, there is a consequence which you will have to bear with. There is no escape from this. Shri Krishna was there. तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत को करवाने में he was the I mean सूत्रधार थे, उन्हीं की वजह से हुआ, सब कुछ हुआ. तो गांधारी gave a curse to him. So what did he do? He was like supreme. He could have simply escape that curse, but no, he said कि जो मैंने किया है ये उसका consequence है. Right. अगर ये इसका consequence है तो मुझे वो फेस करना ही होगा. जब महाभारत में खांडव प्रस्थ दिया गया था, महाभारत में पांडवों को खांडव प्रस्थ was like only forest. तो युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण को कि now this is all forest, what do we do? हमें तो ये दे दिया उन्होंने. तो he said you will have to burn the forest. But they said कि इसमें रहने वाले पक्षी, जीव जंतु ये सब कुछ है, they will be, I mean, harmed. But he said there is no escape. If you really want to establish your kingdom, this is the karma that you will have to do, and you will have to be prepared to face the consequences. Right. उसके consequences अगर हम महाभारत को अच्छे से पढ़ें तो महाभारत जनरली हम ये मानते हैं कि खत्म हो गई वॉर तो महाभारत खत्म हो गई. इनफैक्ट उसके बाद 3 चैप्टर और हैं जिसके अंदर की कैसे राज्य हुआ, कैसे सब कुछ हुआ, आगे और चीजें, जब तक वो आगे इट्स लाइक पांडव देन दे गो टू हेवंस और दे लीव देयर बॉडी, वहां तक आता है. तो वहां बात होती है इसके कॉन्सिक्वेंस की. जब मारा गया था, जब जलाया गया था, तो वहां पर एक तक्षक नाम का देयर वाज अ स्नेक विद अ फैमिली. वो तक्षक वापस आता है और द लोन सर्वाइवर ऑफ पांडवर्स, जो है मतलब जो उसका बेटा होता है धृष्टद्युम्न, सो वो जाके उसको किल करता है. सो दिस इज अ साइकिल. सो कर्मा इज साइक्लिक. इट इज नॉट कि अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा. डज इट मीन कि फिर हम अच्छा ना करें? अच्छा करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना है,
बुरा करेंगे तो भी उसका कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना है। सो कौन सा काम करना चाहिए जो धर्म के अकॉर्डिंग, जो आपकी नेचर बता रही है, ह्यूमन नेचर टू एम्पैथाइज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड अदर्स। एनिमल्स जो एम्पैथाइज कर सकते हैं वो सिर्फ अपने क्लैन के साथ कर सकते हैं, एक शेर दूसरे शेर के बगल में अपनी फैमिली के साथ कर सकता है, बट अभी आप मेरे साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, मैं आपके साथ एम्पैथाइज कर सकता हूँ। सो दिस इज द एबिलिटी विद ह्यूमंस ओनली, and this is what is the nature of humans that separates them from animal. So if we focus karma according to our dharma, that means empathizing, so उसके जो consequences होंगे वो bear तो आपको करने ही पड़ेंगे, but then उसके बाद वो karma will end, otherwise this is cyclic. This is what is the difference. Right. So another terminology where we say that Lord Rama is considered as the complete man, whereas Lord Krishna is always considered as a perfect man. So in managerial world, what should we follow? What should we become? Complete man or the perfect man? Very interestingly, if you ask a girl कि आपको कैसा पति चाहिए, राम जैसा या कृष्ण जैसा, तो there is a big confusion, because राम जैसा पति चाहिए जो एक पत्नी व्रता है, छोड़ भी दिया उसके बावजूद दोबारा शादी नहीं की, लॉयल टू द कोर, प्रॉब्लम में थे तो डिड एवरीथिंग टू गेट द वाइफ बैक, ऐसा पति चाहिए, या कृष्ण जैसा जो दिल तोड़ता है, सबका दिल तोड़ता है, जो रूल्स तोड़ता है, जो रूल्स फॉलो नहीं करता है। सो साउथ इंडियंस आर वेरी गुड इन दैट, सो दे हैव कम अप विद कि राम कृष्ण चाहिए, मुझे राम कृष्ण चाहिए। रामकृष्ण वर्ड इज वेरी कॉमन इन सदर्न स्टेट्स। सो नाउ यू नीड टू डिसाइड कि कहाँ रूल्स फॉलो करने हैं और कहाँ रूल्स को बेंड करना है। अगर मैं युग के हिसाब से देखूं तो युग इस समय कलयुग है, इट इज मोर क्लोज टू द्वापर युग, विच इज मोर क्लोज टू कृष्ण। यही मैं बताना चाह रहा था अभी स्टूडेंट्स को भी प्रेजेंटेशन में, कि जब हम इस समय देख रहे हैं कि इस समय के रूल्स क्या हैं, कोरोना के रूल्स ये हैं, ये हैं, ये हैं, इस समय लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना, ये रूल है, यहाँ नहीं जाना या वहाँ ये जाना, ये करना है, तो क्या उन रूल्स को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें या उन रूल्स को गिवन सिचुएशन के हिसाब से इंटरप्रेट करके उसको एक ऐसे मॉडिफिकेशंस में लेके आए कि जहां पर हम इन रूल्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज जिन्होंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जो जो रूल्स अवेलेबल थे उसके हिसाब से अपने आप को ग्रो किया। लुक एट टेलीकॉम, लुक एट पीपीई मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो मेरे हिसाब से एक मैनेजर को एक अच्छा कृष्ण होने की जरूरत है, लेकिन जिस समय बात आएगी किसी को प्रोटेक्ट करने की, तो उस समय राम की तरह रूल इज रूल के साथ खड़े होने की भी जरूरत है। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। आई थिंक अ मैनेजर कुड बी बोथ, रामकृष्ण नाम के अगर रहें तो अच्छा है। Interesting. Okay, so the next question is with the reference to characters of mythology. Yeah. If you can, name few of the character, and if we can have that imbibing nature. So I'll give you an example. Let's say if we say Hanuman. So Yeah. the way he was humble, the way he was courageous. Yeah. So if you can, define some of the characters which can help people, our audience, to understand that I should have qualities like Hanuman where he's humble. I should have qualities like Ram who was loyal. If you can do that, that will probably help us. Interestingly, when we look at please forgive me because I'm using the words like characters of mythology. So for somebody they may be very real. इसीलिए मैंने पहले बताया कि truth is what you believe in. तो चलिए हम बात करते हैं हनुमान की. Now, not taking one character as such, what if you look at कि जो हनुमान के कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स किसी दूसरे में पूरी तरह से नहीं है, जो दूसरे में है वो पूरी तरह से हनुमान में नहीं है, तो संपूर्ण जैसी बात नहीं है. सो व्हाट आई वुड रादर, द वे यू आर आस्किंग, आई वुड रादर एनकरेज, लेट्स लुक एट कि हमारे कैरेक्टर्स कौन से डोमिनेंट हैं. थोड़ा सा स्वॉट एनालिसिस करें, मैनेजमेंट साइड पे जाएंगे. एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप वर्ल्ड क्लास बनाइए, जो वीकनेसेस हैं उनको सिर्फ मैनेज कीजिए, ताकि थ्रेटनिंग सिचुएशन में आपको वो जो वीकनेसेस हैं वो आपके लिए
they should not drown you, right? It's like जो भी characters हैं, अब ये characters different nature के सबके हो सकते हैं. Say Hanuman, I would say कि management point of view से he was like unconditional follower. Right. He was unconditional follower of Ram. So that is like भक्ति में डूबे हैं और unconditional follower हैं. अगर आपकी nature unconditional follower होने की है, please do that. Follow somebody and then follow unconditionally. जो बोला वो किया. Now अब आप बेवकूफी वाला काम भी करें. So the moment I say unconditional, so I am removing. You are only a follower. Do that if you can do so. Sugriv was a conditional follower. जब तक राम जो है मेरा काम करेंगे, यानी कि बाली को एलिमिनेट करेंगे, तब मैं उनको फॉलो करूंगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करूंगा. तो क्या राम ने उनको डिस्कार्ड किया? नहीं, राम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट थे. Look at yourself. Are you a conditional follower? If yes, then also you are a person of purpose. So ideally characters में से थोड़ा उठा के अगर हम कंबाइन करने की कोशिश करें, so to my understanding वो एक incoherent टाइप का एक बनता है. More required is to look at own qualities, कौन सी dominant है, and उन qualities पे trust करके उनको grow करने की कोशिश करें. This is what is my suggestion. Right. So I think we are through with the session. Right, And sir. if you have any final words for the students, please? See, we are very fortunate to have a culture which is still in India is very much based on our mythology. Western world भी mythology पर based है. Only thing is वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जो based है वो unconsciously है. हमारा मैं कहूँगा subconsciously है. And I suggest कि हम अपनी mythology को study करें, उनसे ये सब कुछ सीखने की कोशिश करें, and with this we will be able to integrate better with things जो कि हमारे culture और हमारी understanding के साथ coherent हैं. This is what is my final word here. Thank you so much, Mr. Arora, for sharing your words of wisdom. On behalf Welcome, of my family, I wish you great success in your all future endeavors. Thank you, sir. Thank you very much, and wishing all the best to all the students also for their careers and life as well. Thank you, and with the hope of meeting you again, long live IIBM and Jai Hind. Jai Hind, sir. Thank you.